Dear students, today this video is based upon the symmetric and skew-symmetric matrix or matrices. So, in case of the symmetric and skew-symmetric matrices, first this is very important to know what is transpose of a matrix. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, इसलिए हमने उसको अलग से डिस्क्राइब नहीं किया है. इफ़ यू चेंज द रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंज, इफ़ यू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, that is supposed to be transposed matrix of the given matrix. So this was transpose of the matrix, and the definition of the skew symmetric or symmetric matrices is based upon that transpose of the matrix. So before starting the definition of this symmetric matrix, and in this lesson, in this video, you will study the symmetric matrix, that property, that skew symmetric matrix, and the property and the combined property of the symmetric and skew symmetric matrices. So let us start the main topic, and before starting the main topic, this is my kind request that till now, if you have not subscribed my channel, this is my kind request that please subscribe the channel and also turn on the bell icon so that you can know the upcoming updates of this channel. So see the this is symmetric matrix. First see the definition of the symmetric matrix. A square matrix. For the symmetric and skew symmetric matrix, this is necessary that your matrix should be square. So a square matrix means the number of rows and the number of columns will be equal in that matrix. So a square matrix A is equal to small a ij. This is the symbol of the elements. A means the element और ij क्या है? That you know the definition of the matrix. Ij is the rows and columns. I for the rows and j for the columns. So a square matrix A such that A is equal to Aij is called symmetric if Aij is equal to Jia. Ij is interchanged. Interchange means Ij के प्लेस पे अब वो Ji हो गया. इट मीन्स द जो रो था वो कॉलम हो गया और जो कॉलम था वो रो हो गया. For all ij of the matrix. So a square matrix is said to be symmetric matrix if aij is equal to ji, means रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देने पे उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट ना आए, वो मैट्रिक्स जैसा था वैसा ही रह जाए, that is called the symmetric matrix. For example, I have taken a matrix here. So if A is equal to 3 minus 1 1, second row is minus 1 2 5, third row is 5 1 5 and minus 2. अब इसको रोज और कॉलम्स को जरा इंटरचेंज करिए. सो सी इंटरचेंज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स. A in some books it is written A power T, and in the NCERT book it is written A dash. A transpose या A dash is equal to, now what to do, you have to interchange the rows and columns. मीन्स जो रो था उसको आप कॉलम बना लीजिए. जैसे फर्स्ट रो क्या है 3 माइनस 1 1, तो वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 3 माइनस 1 1. सेकेंड रो माइनस 1 2 5, तो सेकेंड कॉलम हो जाएगा माइनस 1 2 एंड 5. थर्ड रो इज 1 5 माइनस 2, तो थर्ड column will be 1 5 minus 2. This is the transpose of the given matrix. So now you compare, जो transpose करके आया है वो and the given matrix is same. So we can write A dash is equal to A, means transpose करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, the matrix is same. So this we can write, since A dash is equal to A, so given matrix is symmetric matrix.
So given matrix is symmetric matrix. So this was the definition of the symmetric matrix. Means आई जे के प्लेस पे जे आई, मीन्स रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे अगर कोई इफेक्ट ना आए, द मैट्रिक्स जैसा था वैसे ही रह जाए, देन दीज टाइप ऑफ द मैट्रिसेस आर कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिसेस और सिंगुलर उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक. इसका जस्ट कन्वर्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द एग्जाम्पल यू सी. Skew symmetric matrix, a square matrix A is equal to Aij is said to be skew symmetric if Aij is equal to minus Ji. मीन्स Ij के प्लेस पे Ji कर दिया, रोज और कॉलम्स को आपने इंटरचेंज कर लिया. तो जब कभी भी रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो, देन द साइन ऑफ द मैट्रिक्स इज चेंज्ड. मीन्स अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो गया, और वो माइनस है तो प्लस हो गया. मीन्स इफ आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इफ द साइन ऑफ द मैट्रिक्स इज चेंज्ड, देन दिस टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो वन एग्जाम्पल रिटन हियर. नाउ सी ए डैश, ए पावर टी मीन्स ए ट्रांसपोज या ए डैश. एनसीईआरटी बुक में ए डैश है. In some reference book this is given a power t means a transpose. Now you change. So change, ये फर्स्ट रो है 0 2 -3, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 2 -3. सेकेंड रो -2 0 5, then the second row is this one, then second column will be -2 0 and 5. थर्ड रो है 3 -5 0, then third column will be 3 -5 and 0. Now you have changed the rows and columns. Then you see A dash is equal to, you take minus common. So minus common in all the elements. मैट्रिक्स में अगर आप एक बार माइनस कॉमन लेते हैं तो वो सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से, सबका साइन चेंज हो जाएगा. ये डिफरेंस है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में. डिटर्मिनेंट में अगर आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं तो उसका एक रो या एक कॉलम होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है. मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा. देन दिस इज 0 और ये -2 है तो 2, ये 3 है देन -3, दिस इज 2 देन -2, दैट इज 0, तो 0 -5 के प्लेस पे 5, -3 के प्लेस पे 3, 5 के प्लेस पे -5 और 0 के प्लेस पे 0. 0 का कोई साइन नहीं होता इसलिए वो 0 ही रहेगा. नाउ सी ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ. अब जो ये सिंबल, ये मैट्रिक्स क्या है, यू कंपेयर बाय द फर्स्ट वन, वही मैट्रिक्स आपको फिर मिल गया माइनस कॉमन लेने के बाद. सो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए. A dash equal to minus A means after interchanging the rows and columns the sign of the matrix is changed. वो प्लस था वो माइनस हो गया. So given matrix is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. So this was the skew symmetric matrix. Now we have to see some properties of the symmetric and skew symmetric matrices. So see some properties of the symmetric and skew symmetric matrices और उसका proof भी. So first property is A plus A dash is symmetric. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव टेकन. A plus A dash is symmetric मीन्स वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर आप ऐड करेंगे देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी
symmetric. Now see the proof. Proof is let P is equal to A plus A dash. So let P is equal to A plus A dash. A plus A dash हमने लिया है. Now see P dash is equal to A plus A dash to the whole dash. लेफ्ट साइड और लेफ्ट और राइट दोनों में डैश सिंबल. P dash is equal to A plus A to the whole dash. Then P dash is equal to अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, तो A पे डैश लगेगा A और प्लस A डैश टू द होल डैश, ओपन द ब्रैकेट. सो P डैश इज इक्वल टू A डैश और प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A. देन P डैश इज इक्वल टू A और प्लस A डैश. सो P डैश इज इक्वल टू A प्लस डैश. अब P इक्वल टू क्या है? A प्लस A डैश, यानी P डैश इज इक्वल टू P. मीन्स ट्रांसपोज करने पे कोई इफेक्ट नहीं आया, P डैश इज इक्वल टू P आ गया. सो वी कैन राइट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक. So A plus A dash is symmetric. See the second property. Second property ये प्लस में था और next one will be minus. Second property, see the minus sign. Second is A minus A dash is skew-symmetric. A minus A dash is skew-symmetric. मीन्स कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब सेपरेट होगा, देन द रिजल्टिंग विल बी स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ सी द प्रूफ. सो प्रूफ यू सी, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम या प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी. प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज लेट P इज इक्वल टू A माइनस A डैश. अब दोनों साइड में आप डैश लगाइए, ट्रांसपोज करिए. सो P डैश इज इक्वल टू A माइनस A डैश टू द होल डैश. देन P डैश इज इक्वल टू A होल डैश माइनस A ट्रांसपोज टू द होल डैश मीन्स ट्रांसपोज. देन दिस इज P डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस A. नाउ यू टेक माइनस कॉमन. P डैश इज इक्वल टू, इफ माइनस कॉमन इज देयर तो जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस है वो माइनस A डैश. सो P डैश इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या है? दैट इज सपोज टू बी P. सो P डैश इज इक्वल टू माइनस P आ गया लास्ट लाइन. मीन्स ट्रांसपोज करने पे जो P था वो माइनस P हो गया. सो A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक. सो A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक. ये दो प्रॉपर्टी थी, और भी प्रॉपर्टीज हैं. सी द थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज A इंटू A डैश. A इंटू A डैश इज सिमेट्रिक. is symmetric matrix. Now see the proof. Proof of this property is supposed to be P. जैसे अभी तक आपने P लिया है, इसको भी P ले लेंगे. So let P is equal to A into A dash. Dash means transpose. दोनों साइड में डैश साइन. P dash is equal to A into A dash to the whole dash. Then P dash is equal to, now see you remember the property of the transpose matrix. जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहता है और A into B रहता है तो B पहले लिखा जाता है. अगर नहीं पता है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए. A into B का ट्रांसपोज, इस केस में B पहले लिखा जाता है. सो
a dash to the whole dash and into a. Okay, so P dash is equal to a dash. So a dash to the whole dash ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a and into a dash. So P dash is equal to, वो P सपोज था, so P dash is equal to P. मीन्स ट्रांसपोज करने पे कोई इफेक्ट नहीं आया, जो था वही रह गया. सो वी कैन राइट, सो a into a dash is सिमेट्रिक. ये थी थर्ड प्रॉपर्टी. और इसी फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी पे बेस एक रिजल्ट है, दिस वन, बहुत यूजफुल रिजल्ट. और सम क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी बुक इज बेस्ड अपॉन दिस रिजल्ट. सो इसका कोई डिस्क्रिप्शन खास नहीं है. नाउ सी व्हाट इज द रिजल्ट. इट इज a square matrix can be expressed as the sum of the symmetric and skew symmetric matrices. मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और वो फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक होगा एंड द सेकेंड पार्ट इज इसकी सिमेट्रिक. और इस पे बेस एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है. सो ए इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, अभी आपने प्रूव किया है, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक. और जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज इसकी सिमेट्रिक, दिस इज इसक्यू सिमेट्रिक. सो ए गिवन मैट्रिक्स कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, या दो पार्ट में इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. एक पार्ट सिमेट्रिक होगा और एक पार्ट इसकी सिमेट्रिक. इसकी वैल्यू फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करिए और इसकी वैल्यू फाइंड करिए, ऐसे ही छोड़ दिए. इसको सॉल्व नहीं करना है. अगर आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो सॉल्व करके वो फिर a आ जाएगा, इसलिए इसी पार्ट में ऐसे ही आंसर छोड़ दिया जाता है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक. सो टुडे इन दिस वीडियो यू हैव सीन the definition of the symmetric matrix and the skew symmetric matrix and some properties of the symmetric and skew symmetric. So I hope the definition and the property and all the steps whatever I have told today in this video is clear to you. All the best. Thank you.